अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आजीविका की 3 बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ काम करने के लिए हैदराबाद में अपना अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि मंत्री केटीआर के आमंत्रण पर यहां इसकी शुरुआत की गई थी और केटीआर ने AIEF को युवा आबादी के पोषण पर ध्यान केंद्रित करने और भारत को दुनिया में कदम रखने में मदद करने के लिए कहा है। I can't say the same thing about your travel choices. You started with Jamshedpur, Ranchi, and then you're off to Bhopal tonight. All terrible choices, I can tell you that. Matthew, yeah, we have you to blame for that. And he's actually gladly taking responsibility. Thank you for that. But Nishant, I loved what you said. You started off saying this is a very special place. It is indeed. I thought you'd talk about how you met your wife here. You didn't. Is she here in the audience, by the way? You're in for trouble if she is. He actually apparently met his wife here too, so congratulations on that as well. But like I was saying, it's special because of multiple reasons. This is a city where when I said biology meets technology, I wasn't kidding, or I wasn't just doing it for the sake of it. I don't know how many of you know this, but we are home to 1/3 of global vaccine production, this city alone. We literally produce 9 billion. We produce 9 billion doses of vaccine from here, and come next year, it will be 14 billion doses. So we'll literally be producing 50% of global vaccines from this city. We are also home to some of the largest American enterprises here. In fact, Amazon's world's largest campus is right here in this city. And like Rebecca said, this is one of the best kept secrets about India. Because a lot of these, lot of overseas investors who are looking at India typically end up in Delhi, then go to Bombay. Some of them even end up in Bangalore. And then when they eventually come to Hyderabad, they're pleasantly surprised, and then their decision is made. That's how it has been working over the last 8 years. In fact, not only Amazon's world's largest campus, some of the largest technology companies have their second largest bases outside of the US right here in this city. In fact, the marquee list includes Apple, Google, Meta, Microsoft, of course, which has been here for a while, Uber, my friend Anand Ramamurthy is here, Micron, Salesforce, ServiceNow, Qualcomm, Medtronic, Novartis, the list goes on, it's a long list. All of these large marquee companies have done tremendously well here in India, and particularly in Hyderabad. In fact, we have more than 500 American enterprises which have been doing rather well. In fact, just this morning, I met the entire leadership team of a company called State Street. Now, State Street, for those of you who are from the US would know very well, is one of the large Fortune 500 companies, a very large behemoth in banking and financial services. They started with 0 employees in 2018. Today, they have 9,000 people working out of Hyderabad. That's how quickly they've ramped up. Not a day passes by without me or Jayesh meeting some large or small or medium American enterprise who's wanting to make Telangana and Hyderabad their gateway into India. Let me also add, while we are at it, since Rebecca is here, in fact, Hyderabad's consulate. केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सीएम केसीआर को एक और पत्र लिखा है। उन्होंने तेलंगाना में हवाई अड्डों की स्थापना में सहयोग करने का अनुरोध किया है। किशन रेड्डी ने केसीआर को आदिलाबाद, जकारनपल्ली और वारगल हवाई अड्डों के निर्माण के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी है, जिनके पास सभी परमिट है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने याद दिलाया है कि पूर्व में उड्डयन मंत्री द्वारा पत्र लिखे जाने के बावजूद राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सीएम केसीआर से केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग का लाभ उठाने की अपील की है। तेलंगाना राज्य के राज्यपाल सौंदर्य राजन ने कहा है कि वर्तमान मानवता के लिए आध्यात्मिकता बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलिसाई ने औपचारिक रूप से ब्रह्मा कुमारियों के तत्वाधान के जिमखाना मैदान में 4 दिनों तक चलने वाले महाशिवरात्रि उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और उन्होंने उन कला रूपों का देखा जिन्हें ब्रह्मा कुमारी प्रणाली के संबंध में उनके इतिहास को दर्शाने के लिए व्यवस्थित किया गया था। ज्योति प्रज्वलित करने के बाद ब्रह्मा कुमारियों ने राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्य राजन को सम्मानित किया है। राज्यपाल ने ब्रह्मा कुमारियों के मार्गदर्शन में जिस तरह से 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ 66 फीट की शिवलिंग की स्थापना की है, उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया को शांति और खुशी से समृद्ध करने की इच्छा के साथ एक महान आध्यात्मिक वातावरण बनाकर 4 दिनों के उत्सव मनाना खुशी की बात है।
तमिलिसाई ने कहा है कि शिवरात्रि उनके लिए बहुत शुभ दिन है और शिवरात्रि और नवरात्रि का संयोजन महान आध्यात्मिक चिंतन लाता है। वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता का बोध कराने के लिए विदेशों की निगाहें भारत की ओर लगी है। राज्यपाल तमिलिसाई ने ध्यान के माध्यम से लोगों में आध्यात्मिकता, शांति और देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए ब्रह्मा कुमारी के प्रयासों की सराहना की है। विभूति, चंदन, flowers, milk, and he is very fond of that. And Tamil Nadu particularly, so many Shiva temples are there. And always the kingdoms are associated with Shiva temples. And to mark the Shivaratri, I am very happy that on this auspicious occasion, I could come here to celebrate the Shivaratri with all your blessings. Somebody told blessings, it's not blessing. Blessing is only from God. We human beings can wish each other. And in Tamil Nadu, as I say, the history, and even in Telangana, where we have seen Kakatiya kingdom and every kingdom, they had a strong association with temples. And Pragadishwara temple, this is the Periya Koil we say, biggest Shiva and biggest Nandi Deva. So when we pray God, all our heaviness, because I visited the exhibition which exhibited the spiritual power of our mind, spiritual power of our body. So when we enter, our mind may be little heavy, but when we pass through the spiritual exhibition and when we come out, almost all heaviness trashed, and with a lighter mind and lighter body we come out. So when we reach Shiva, almost we are blank without any worries. Only the happiness which is going to come will be where our heart will be ready to receive that. I have in my own experience, I have felt the spirituality, the spiritual power, because today when our sisters and brothers came and invited me, almost yesterday only I went from Hyderabad, and my 2 or 3 days continuous program. Tomorrow I am going to Bangalore, and from Bangalore, Chennai Rajbhavan we are having a program, and next day I am having a program at Puducherry. So I completed 3 days program yesterday Hyderabad, and my whole program 3 days was around Puducherry, Chennai and Bangalore. But when our sisters and brothers came and invited me, luckily this evening was free. So exclusively for this I came, and early morning 6 o'clock I am leaving. So I thought the spiritual power of Shiva gave me this time, spared me this time to come over here. Otherwise, if my program as usual was almost occupied my whole day, I wouldn't have been able to come to this and get the blessing of Lord Shiva. So He makes the way for us. He makes us to enjoy the spirituality. And always we say work is. सीएम केसीआर ने घोषणा की है कि जगतियाला जिले के कोंडागट्टू अजंत्रा क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। कोंडागट्टू के दौरे के दौरान स्वामी के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ मंदिर की पुनर्निर्माण और विकास की समीक्षा की है। केसीआर ने खुलासा किया है कि मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ की घोषणा पहले की जा चुकी है और 500 करोड़ भी आवंटित किए जाएंगे। सीएम ने अधिकारियों को कोंडागट्टू को देश में प्रसिद्ध हनुमान पुण्यक्षेत्र के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया है। यह सुझाव दिया गया है कि कोंडागट्टू मंदिर को अंगम शास्त्र विधियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए और भक्तों की सुविधा के लिए जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। सीएम केसीआर ने अधिकारियों को कोंडागट्टू अंजना मंदिर बनाने का आदेश दिया है, जहां भारत में सबसे बड़ा हनुमान स्वामी मंदिर स्थित है, जो सभी सुविधाओं के साथ सबसे शानदार है। इससे पहले कोंडागट्टू पहुंचे सीएम ने हनुमान के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की है। मंदिर में पंडितों ने खचाखच भरे सीएम केसीआर का स्वागत किया, स्वामी के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की है। मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ उन्होंने कोंडागट्टू पर कोनेरू, कोटा, पुष्करिणी, बेतला स्वामी मंदिर, सीतम्मा, कनिधारा,
कोंटा, लारा, यूडी, गुट्टा और अन्य स्थानों का निरीक्षण किया है। केंद्रीय जल मंत्रालय सचिव वानी महाजन ने सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त गांव घोषित करने वाला पहला राज्य बनने पर तेलंगाना को बधाई दी है। पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के केंद्रीय सचिव वानी महाजन सीएस शांति कुमारी ने पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस मौके पर सी शांति कुमारी ने केंद्रीय सचिव वानी महाजन को राज्य में चलाए जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी है। केंद्रीय सचिव ने ओडीएफ में उपलब्धियों की सराहना करते हुए सुझाव दिया है कि सभी गाँव को ओडीएफ प्लस गांव बनाया जाए। ओडीएफ प्लस गांव में मुख्य रूप से मल अपशिष्ट, सेप्टिक टैंक और सीवेज को बिना छोड़े या नहरों, जल निकायों और खुले क्षेत्रों में डंप किए बिना उपचारित किया जाना चाहिए। आवश्यक गांव में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का सुझाव दिया है। उन्होंने तेलंगाना को ओडीएफ प्लस बनाने के देश में एक आदर्श राज्य बनाने की कामना की है। सीएस शांति कुमारी ने कहा कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों को हर महीने 259 करोड़ रुपए दिए जाना चाहिए और ये बताया गया है कि ग्राम पंचायतों में तेलंगाना की हरियाली के लिए 10% धन खर्च करने के लिए कदम उठाए गए हैं और इस प्रकार राज्य में हरियाली में 7.7% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सभी गांव में 1370 करोड़ की लागत से वैकुंठ धाम का निर्माण कराया गया है और बताया गया है कि सभी ग्रामों को ग्रामीण प्रकृति वनों का निर्माण किया जा चुका है तथा इनके अतिरिक्त प्रत्येक प्रमंडल एवं नगर पालिका में 10 एकड़ क्षेत्रफल में 2725 वृहत प्रकृति वनों का निर्माण किया जा रहा है। एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हस्तिनापुरम में भाजपा नुक्कड़ सभा में रंगारेड्डी शहरी जिला अध्यक्ष बंडी संजय व समा रंगारेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और बंडी संजय ने कहा कि केसीआर ने डबल बेडरूम का घर देने वाले से मुकर गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को 2,50,000 घर दिए हैं। बंडी संजय ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि केसीआर का परिवार पहले पूजा के बहाने कोंडागुट्टू गए लेकिन बाद में वहां जमीन खरीदने के बाद अब वे विकास का राग अलाप रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी और फूल चिन्ह को वोट देने का आह्वान किया है। तेलंगाना के प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं और सशस्त्र लड़ाकों ने रविंद्र भारती के मुख्य सभागार में बोवनगाने धर्माभिषाम के शताब्दी समारोह का आयोजन किया और इस मौके पर मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उनकी सेवाओं, प्रेरणा और उनके साथ जुड़ाव को याद किया। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि उन्होंने गीता पनिवारल संगम का गठन किया और गौड़ा जातियों के अधिकारियों के लिए अंत तक संघर्ष किया है और ऐसा कहा जाता है कि भिक्षादान ने कई श्रमिक संघों की स्थापना में एक प्रमुख भूमिका निभाई और श्रमिक पक्षपात के रूप में मान्यता प्राप्त की है और ये पता चला है कि उन्होंने नीरा को सामान्य अवस्था में लाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। तेलंगाना राज्य बनने के बाद सीएम केसीआर ने खुलासा किया कि गीता कार्यकर्ताओं का कल्याण के लिए नीरा नीति देश में किसी अन्य राज्य की तरह पेश नहीं की गई है। सीएम केसीआर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीआरएस के नेताओं ने कहा है कि खेल प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष अलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी के नेतृत्व में अंबरपेट में सीताराम मुल्ला कल्याणम का आयोजन किया जा रहा है। वे देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते थे क्योंकि सीएम केसीआर ने तेलंगाना राज्य का विकास किया है। सीएम केसीआर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीआरएस के नेताओं ने कहा है कि खेल प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष अलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी के नेतृत्व में अंबरपेट में सीताराम मुल्ला कल्याणम का आयोजन किया जा रहा है। वे देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते थे क्योंकि सीएम केसीआर ने तेलंगाना राज्य का विकास किया है। लगातार वनों की सुरक्षा में कार्यरत वन विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को अच्छी शारीरिक स्थिति व मानसिक प्रफुल्लता की आवश्यकता है। मुख्य वन अधिकारी RM डोबरियल ने कहा है कि राज्य स्तरीय वन विभाग के खेल 2 दिनों के लिए दुल्लापल्ली वन अकेडमी हैदराबाद में आयोजित किए गए थे। इन प्रतियोगिताओं में चारमीनार, भदाद्री, राजन्ना, यदाद्री, जगुलंबा और बंसारा कालेश्वरम वन मंडलों के वन कर्मचारियों ने भाग लिया और मार्च उपवास का आयोजन किया है। प्रत्येक 2 वर्ष में होने वाली इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर की वानिकी प्रतियोगिताओं में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाएगा। पीसीसीएफ सहित स्टाफ ने खेल भावना का परिचय देते हुए प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लेने वाले स्टाफ का उत्साहवर्धन किया है और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरुषों और महिलाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के ओपन, वेटरन और सीनियर वेटरन वर्ग का आयोजन किया गया और 2 दिनों तक दौड़, कबड्डी, लंबी कूद,
भारोत्तोलन और डिस्कस थ्रो, कैरम, शतरंज, राइफल शूटिंग, बैडमिंटन और क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। लगातार काम के दबाव में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी अपनी हैसियत को दरकिनार कर एकजुट हो गए और कई खेल खेले। विजेताओं को बधाई दी गई है। कहना ही होगा कि पीठ के पीछे छुरा घोंपना शब्द राजनीति में खूब जचता है। यह शब्द राजनीति में इतिहास में बहुत सुना गया है। एनटीआर की चुगली करके चंद्रबाबू के सीएम बनने के बाद तेलंगाना का झंडा फहराने वाले केसीआर क्या अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? क्या ईटेला राजेंद्र उनके इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जो सीएम केसीआर नहीं चाहते थे? इटेला की पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? विधानसभा में केसीआर के बार बार इटेला के नाम का उल्लेख करने के पीछे की क्या कारण है? इटेला राजेंद्र तेलंगाना आंदोलन में केसीआर के साथ चलने वाला एक सिपाही केसीआर की मंडली में उन्होंने सबसे अहम जिम्मेदारियां संभाली। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। मंत्रिमंडल में गलत परिस्थितियों में इटेला को मंत्रिमंडल शामिल किया गया था। इसके तुरंत बाद इटेला को जमीन हड़पने के आरोप में मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया गया। इटेला अंत में भाजपा में शामिल हो गए। हुजूराबाद उपचुनाव में सत्ता पक्ष के खिलाफ जीत हासिल कर अपनी ताकत दिखाई। उसके बाद धीरे धीरे भाजपा पार्टी में नियंत्रण हासिल करने की कोशिशें तेज होती गई। कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन की वजह से इटेला राजेंद्र पार्टी से नहीं गए हैं। जल्द ही इटेला राजेंद्र को प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का अभियान भी जोर पकड़ रहा है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल बढ़ाए जाने से ऐसा लग रहा है कि बंडी संजय यह तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाएंगे। सीएम केसीआर ने प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में उतरे इटेला राजेंद्र को भ्रमित किया। सीएम केसीआर का बार बार विधानसभा में इटेला के नाम का जिक्र चर्चा का विषय बन गया है। भले ही इटेला राजेंद्र हुजूराबाद के विधायक के रूप में जीत गए, वहां के सभी आधिकारिक कार्य एमएलसी कौशिक रेड्डी की उपस्थिति में किए जा रहे हैं। हाल ही में मंत्री केटीआर आए थे, लेकिन विधायक को नहीं बुलाया गया। इटेला के राजनीतिक प्रतिद्वंदी एमएलसी कौशिक रेड्डी को विधान परिषद में विहिप की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इटेला सामाजिक समूह से ताल्लुक रखने वाले बंडा प्रकाश को परिषद के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी तरफ भाजपा के खेमे इटेला राजेंद्र के नाम पर बार बार उल्लेख किए जाने के कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाल ही में भाजपा में नेताओं के बीच संदेह बढ़ गया है। यह फैसला जा रहा है कि एक प्रमुख नेता केसीआर के फार्म हाउस पर गए हैं। दूसरी ओर केसीआर के यहाँ कहने के पीछे क्या तर्क है कि वह इटेला की सलाह लेंगे, चर्चा चल रही है। भाजपा को लगता है कि उन्होंने राजनीतिक रणनीति के तहत भाले को नुकसान पहुंचाने की बात कही है। हाल ही में इटेला राजेंद्र की टिप्पणी की केसीआर के पास सभी राजनीतिक दलों में कवर होंगे को भगवा पार्टी के अन्य समूहों के नेताओं द्वारा याद दिलाया जा रहा है। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, अवरन कौन है? भाजपा सूत्रों को लगता है कि वे हमें एक अज्ञात और भ्रामक स्थिति में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को नकारने आए सुवेंदु अधिकारी पर काफी फोकस किया है। इसी तरह इटेला राजेंद्र को उम्मीद थी कि वह तेलंगाना में ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्हें लगता है कि उन्हें पार्टी से अपेक्षित स्तर पर समर्थन नहीं मिल रहा है। वह सुवेंदु अधिकारी अपने साथ कई नेताओं को बीजेपी में लाने में कामयाब रहे। इटेला राजेंद्र के साथ नेता काफी हद तक भाजपा में शामिल नहीं हुए। पार्टी में एक नई प्रवेश समिति का गठन किया गया। भले ही उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन कोई प्रवेश नहीं हुआ। क्या कोई प्रवेश समिति होंगी? क्या यह जरूरी है? केसीआर के सभी राजनीतिक दलों में शामिल होने की टिप्पणी पार्टी नेतृत्व तक पहुंच गई है। विधानसभा में केसीआर का नाम आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले इटेला राजेंद्र आखिरकार चर्चा का विषय बन गए हैं। हैरान होने की जरूरत नहीं है कि आने वाले दिनों में इटेला बीआरएस की ओर बढ़ेंगे। विशाखापट्टनम हैदराबाद गोदावरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और बीबीनगर घाट के इस सेक्शन के बीच रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया।
ट्रैक का काम दक्षिण मध्य रेलवे की टीम ने युद्ध स्तर पर पूरा किया और अधिकारियों ने खुलासा किया है कि पटरी से उतरे डिब्बों को सेक्शन से हटा दिया गया है और रेलवे ट्रैक की बहाली और ओवरहेड बिजली आपूर्ति का काम पूरा कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि त्रिवेंद्रम और सिकंदराबाद सबरी एक्सप्रेस ट्रेन इस मार्ग से रात 9:15 बजे रवाना हुई और दक्षिण मध्य रेलवे ने घोषणा की है कि सिकंदराबाद से कांचीपेट तक नियमित रूट पर लंबी दूरी की ट्रेनों सहित सभी ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई है। युग तुलसी फाउंडेशन के चेयरमैन शिव कुमार को इस बात की भनक लग गई थी कि राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए के नारे के साथ सत्ता में आई बीजेपी को उनकी विचारधाराओं को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी गायों की हत्या देख रही है और शिव कुमार ने कहा कि गौ हत्या के विरोध में इस महीने की 24 तारीख को बीजेपी कार्यालय का घेराव करेगी। युग तुलसी फाउंडेशन के चेयरमैन शिव कुमार को इस बात की भनक लग गई थी कि राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए के नारे के साथ सत्ता में आई बीजेपी को उनकी विचारधाराओं को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी गायों की हत्या देख रही है और शिव कुमार ने कहा कि गौ हत्या के विरोध में इस महीने की 24 तारीख को बीजेपी कार्यालय का घेराव करेगी।